Good morning, everyone. Today we are going to study our further topics. This one is relation between induced charge and change in magnetic flux. See, in previous class we have studied about the motional EMF, which is generated due to the motion of the conductor in a magnetic field. Alright, so that induced charge, whatever current is produced in that conductor, which we have studied in our previous topic, there is some induced charge also. Just because current is moving, so some kind of charge is induced. That number of charges, that induced charges, depends upon the change in magnetic flux only and doesn't depends upon the time for which it is produced. मतलब वो केवल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो फ्लक्स कितनी देर चेंज हुआ या कितने टाइम के लिए हुआ. ऑलराइट, सो फॉर दिस, एज वी नो, अकॉर्डिंग टू Faraday's law, what was that? The magnitude of EMF, it is equals to d phi by dt, or we can say it is delta phi by delta t for some larger time variation than this much dt. So if as you have seen in a current loop, आपने करंट लूप पीछे देखा था. मैंने कहा था कि उसका टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, क्योंकि और आर्म्स जो हैं उसका रेजिस्टेंस नहीं है. तो ऐसा कोई भी करंट लूप हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस R हो. सो इफ R इज द टोटल रेजिस्टेंस of the closed loop, then as we have studied earlier, induced current I is equals to E by R, which was BLV by R. E is equals to BLV जो आया था. तो यहाँ पे, और वी कैन राइट करंट एज चेंज इन चार्ज विथ टाइम, डेल क्यू बाई डेल टी. करंट को मैंने डेल क्यू बाई डेल टी लिखा है. फाई EMF होता है डेल फाई बाई डेल टी, तो होता ही है ना, फैराडे लॉ, मल्टीप्लाइड बाई 1/r. मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ यू कैन ईजिली सी दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर. ये एक्सप्रेशन ही हमको चाहिए था. रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स. देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है, दिस वन इज चेंज इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा क्यू. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, डेल्टा क्यू, द इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल्स टू नेट चेंज in magnetic flux divided by resistance of that closed loop, SISTANCE. Alright, so clearly the induced charge depends upon the net change in the magnetic flux and not on the time interval delta t of the flux change. Alright, so it does not depend upon the time interval. Now see one question which is frequently asked in board paper. It is a type of question related to the EMF generated between the end points of the wings of an aeroplane. See, when aeroplane having made of metallic body, all right, moving or flying above the sky, all right, so it is actually moving in a magnetic field. So as we know, it is a conducting body having wingspan. It is moving in a magnetic field.
So some kind of EMF is also generated there. Yes, EMF of some volts is generated between the end point of the wings. So how? We will see it. Now question is, an aeroplane is flying horizontally from, it is properly written, it is moving horizontally. Alright, so you have to mark it. From west to east, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ इट्स विंग्स हैविंग ए स्पैन ऑफ 20 मीटर. देखिए यहाँ पे अब फिगर को समझ लेते हैं पहले. मान लीजिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये है आपका एरोप्लेन. ऑलमोस्ट इसकी विंग्स को आप, ठीक है, विंग्स को आप ऐसे मान लीजिए कि ये स्ट्रेट है. मैंने तो इसको बेंड बनाया ताकि एक एरोप्लेन लुक आए, वरना वो एकदम स्ट्रेट आप मान लीजिए. इट इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज़ नॉर्थ, इट इज़ साउथ, ठीक है. इसका मतलब फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, नीचे से ऐसे इधर से इधर. इसको अगर मैं अब इस तरह के फॉर्मेट में बनाऊं कि इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू केवल ऐसे नज़र आए, ये जो प्लेन मैंने ऐसे बनाया है इट इज़ एक्चुअली इन द प्लेन, ठीक है. तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, जैसे ये इस तरह से, और ये विंग्स मुझे केवल ऐसे नज़र आएंगे, ये और उधर वाला विंग केवल ऐसे, ठीक है ना. क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरह का कुछ नज़र आएगा. अब देखिए, एज मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम लोअर एंड टू अपर एंड, ठीक है, तो मतलब ऐसे इस तरह से पार कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल में दिया हुआ है हमको, यानी इस तरह से. अब मैं अगर इसको थोड़ा सा फिगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए होराइज़न में बना देता हूँ, अर्थ के होराइज़न के फॉर्मेट में. मान लीजिए ऐसे ही अर्थ का कोई एक प्लेन है, अर्थ बहुत बड़ी ऐसे सर्कल है, तो उसमें फील्ड लाइंस, ये जो एरोप्लेन होगा ये कुछ ऐसे पार कर रहा होगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे पार कर रहा होगा, ठीक है. इसमें दिया हुआ है कि ये ऐसे पैरेलल चला जा रहा है, ठीक है. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको दिया हुआ है, BH क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है जो परपेंडिकुलर होता है विंग, मतलब इस उसके जैसे मैंने ये बनाया था ना कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वॉज परपेंडिकुलर टू दैट कंडक्टर. तो यहाँ परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये तो पैरेलल उसी डायरेक्शन में हो गया, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करने वाला EMF. देन वी नीड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. आपको पता है अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो इसका एक्चुअल कंपोनेंट होगा, मतलब ट्रू वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू, और इसका एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, दैट इज BV. ऑलराइट, तो BV है ना, तो ये BV जो है इट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट. सो दिस BV इज एक्चुअली वर्टिकल कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दी wing span. All right, so we need what? V is equals to 900 kilometer per hour, that is we can change it in meter per second by multiplying it by 5/18. So it is 900 multiplied by 5/18, it is meter per second. So it is 5 5 25, 250 meter per second. Now wing span or it is L is equals to 20 meter, so it is in meters, no need to change. Horizontal component of magnetic field is this much, as horizontal component of B, that is BH is equals to 5 into 10 power minus 4. So from, as you note from dip angle, that tan delta is equals to BV by BH. BV by BH ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में.
तो यहाँ से बी वी निकल जाएगा, वर्टिकल इज इक्वल्स टू बी एच टेन डेल्टा, देन दिस इज इक्वल्स टू 5 into 10 power minus 4 multiplied by tan 30 degree, just because delta is equals to 30 degree. So it is 5 into 10 power minus 4 divided by tan 30, and tan 30 is 1 by root 3. So this is our, and this can be written as use this root 3 1.732, solve it, we will get 5 into 0.577 into 10 power minus 4 टेस्ला, 1.732 पुटिंग इट. अब अगर हमें ये पता चल गया, सो EMF जनरेटेड और पोटेंशियल डिफरेंस E is equals to vertical component of B, L and V, multiply it, 5 into 0.577 into 10 power minus 4, this is BV, L is 20 and this is 250, 250 नहीं, V कितना है 250 मीटर पर सेकेंड, यस 250 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज 20 10 power minus 4 this, so answer will be almost 5 25 दूना 50, ये 1.5 के अराउंड में आंसर आएगा, 1.45 वोल्ट्स के अराउंड में इसका आंसर होगा. ऑलराइट, तो दिस वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एट द एंड्स ऑफ द विंग्स. क्यों आया? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली प्रोड्यूस दिस पोटेंशियल डिफरेंस. और इसी वजह से मैंने ये चीज़ समझाया कि आपके हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर में है विंग के, वही वाला जनरेट करेगा. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड EMF. देखिए अभी हमने इंड्यूस्ड EMF जनरेट होने के दो मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो उसी को वन बाय वन स्टडी करेंगे. अब हम methods of generating induced EMF. As you know, an induced EMF can be produced by changing the magnetic flux linked with the circuit, and that magnetic flux was phi is equals to BA cos theta or B dot A. Alright, the magnetic flux can be changed by one of the following methods. कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज जस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B. हमने इंड्यूस्ड EMF को मैग्नेटिक फील्ड B को चेंज करके जनरेट किया था. आपको याद दिला दें कैसे. फर्स्ट वन, दिस वन इज मूविंग अ मैग्नेट towards a stationary coil, Faraday's experiment. And second one is opposite of this, moving a coil towards a stationary magnet, opposite of this. And third one more phenomena was there, Faraday experiment का ही part है, varying current in the neighboring coil. ठीक है ना, ये Faraday के तीनों एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट्स थे, ये हमने देखा ऐसे इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल. दिस वी हैव आल्सो सीन, वी हैव सीन लाइक दिस वन वाज अरेंजमेंट, दिस वन इज अ ट्रेल ओवर विच दिस PQ कंडक्टर वाज मूविंग. मान लीजिए PQ यहाँ से यहाँ मूव किया, PQ बहुत छोटी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए v वेलोसिटी से dt टाइम तक चला, देन दिस डिस्टेंस विल बी v dt टाइम तक मूव किया. तो उसने कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ,
तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर इसके मैं स्क्वायर के बना रहा हूँ, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस पार्ट. सो एरिया ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई द magnetic field will be our flux. So in that case d phi, change in magnetic flux was what? B multiplied by change in area. This we have already studied. So it is B multiplied by area is V delta t, V dt is this much, and this length is, if I say it is L, so we can say V dt it is the thickness this much and L is equals to this. V dt क्यों? dt टाइम में V वेलोसिटी से ये इधर मूव कर रहा है. तो d phi इज इक्वल्स टू बी एल वी डी टी, है ना, डी टी एक साथ. सो ई एम एफ इंड्यूस्ड विल बी डी फाई बाई डी टी एज वी नो द मैग्नीट्यूड. सो इट इज डी फाई बाई डी टी कैंसिल आउट, सो इट इज बी एल वी. ठीक है, तो ये ई एम एफ भी हमने देखा था जो किसके कारण जनरेट हुआ था, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल के कारण. नाउ थर्ड वन इज आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर टुडेज क्लास. देखिए ये जो है, अब हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज ऑल्सो द थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th. सो फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. कंसिडर this as the direction of magnetic field. मान लीजिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का. एकदम फिगर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ कंसिडर अ कॉइल. कॉइल कैसा हो है? रेक्टेंगुलर कॉइल. अब चूंकि मैं यहाँ पे 3D व्यू बना नहीं सकता तो मैं यहाँ पे आपको एक इसके थ्रू दिखाऊंगा, कार्ड के थ्रू. देखिए ये है जो ऐसे परपेंडिकुलर वे में रखा हुआ है, मतलब ऐसे ये आप देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में ही नहीं है, फील्ड लाइन इधर से इधर पूरे स्पेस में यहाँ से यहाँ ऐसे पार कर रही है, ऐसे जैसे पेन का ओरिएंटेशन है इस तरह. ये हो गया हमारा कॉइल. कॉइल आप समझिएगा कि ये जो कॉर्नर्स हैं इस पे बाउंडेड वायर है, बीच में खोखला है, यहाँ से यहाँ बाउंडेड, ऐसे कॉइल है. अब आपको पता है ये कॉइल का सरफेस एरिया जो होगा ये वाला होगा, और सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में अगर हम वेक्टर लेंगे तो वो इस तरह से ओरिएंटेड परपेंडिकुलर रहेगा. यानी अगर मैं इस तरह से ऐसे इसको मूव कर रहा हूँ कॉइल को, मैं कॉइल को एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से रोटेशन मानिएगा इसके अंदर. तो आप देखिए कि अभी इस कॉइल के अंदर से सारी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं. जब मैंने इसको हल्का सा ऐसे ओरिएंट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो इसकी कौन सी फील्ड लाइन, ऊपर और नीचे वाली फील्ड लाइन पार नहीं कर पा रही है इसके अंदर से, क्योंकि वो बाहर से चली जा रही है. और ओरिएंट किया तो और फील्ड लाइंस कम हो गई इसके थ्रू पास होने वाली, और जब पैरेलल कर दिया तो कोई भी फील्ड लाइन पार नहीं कर रही है. ये कॉइल इसी तरह रोटेट करता है. फिर से ऐसे ओरिएंट किया, फिर फील्ड लाइन बढ़ती चली गई, और जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस पार कर रही हैं. Alright, so this is actually the motion which is generating the EMF in this coil. ये coil क्या, इसके किनारे पे लपटा हुआ कंडक्टर है. अब देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब ये coil इस तरह से ओरिएंटेड है तो ये है इसका क्या, एरिया वेक्टर. देखिए एरिया वेक्टर अभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, इस ढक्कन की डायरेक्शन को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अब जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, है ना. जब मैंने ऐसे किया तो एरिया वेक्टर ये क्या हो गया, नीचे चला गया. जैसे मैंने प्लेन को पैरेलल किया तो एरिया वेक्टर इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अगेन इट इज मूविंग, एरिया वेक्टर इज अगेन मूविंग. तो हम कह सकते हैं कि अब हम इस फिगर को प्रॉपरली बना सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं जो फिगर बना रहा हूँ दैट इज दिस वन इज आवर कॉइल. ठीक है ना, ये इस तरह से ओरिएंटेड है. अब समझिएगा दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, ये जब मैंने ऐसे लिखा तो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, तो ये जो प्लेन से हो के पास हो रही है ये वाली लाइन जो ऐसे जिसके अबाउट ये घूम रहा है हमारा कार्ड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. देखिए ये कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होती है. ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन 90 डिग्री. अब देखिए मान लीजिए ये कॉइल जो है ये P Q R S है. अब देखिए जो कॉइल है
इसकी क्या खासियत है कि इसका सरफेस एरिया ए है. इफ थीटा इज द एंगल, if theta is the angle between area vector of PQRS surface and magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके बीच का एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज some angle theta and it is area vector. Area vector can be written as n cap. All right, and this is the direction of magnetic field. This angle is theta. मैंने आपको दिखाया ना, it is continuously changing. अगर ये रोटेट कर रहा है तो this theta is actually changing. अभी ये देखो, मैं थीटा के साथ ये एरिया वेक्टर मैंने ओरिएंट किया. अब देखो एंगल ये वही थीटा हो गया ना जो दिख रहा है. ठीक है, सो थीटा एंगल इज एक्चुअली दिस मच. नाउ एज this theta is changing with time, if angular velocity of coil is omega, then if theta orientation in time t टाइम में अगर थीटा ओरिएंटेशन है देन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. ऑब्वियसली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो दिस फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा विच इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी, वेयर ए इज व्हाट, द एरिया ऑफ द कॉइल. सो इट कैन बी रिटन एज phi is equals to BA cos omega t. This is the flux. All right. As the coil is rotating, so देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ये कॉइल रोटेट कर रहा है, अभी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे मूव करके ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, तो लगातार इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रही है ना जो इसके इस सरफेस से होके पार करें. अभी ये सबसे कम, अभी ये इस टाइम में सबसे ज़्यादा, फिर ये फील्ड लाइंस कम होती चली जाती हैं, फिर ऐसे घूम के सबसे ज़्यादा. तो ये जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस लगातार इसके थ्रू पास होने वाली ये लगातार चेंज हो रही हैं. तो फ्लक्स चेंज हो रहा है और चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes as the coil rotates. So they changed, this will induce the EMF. So an induced EMF is set up in the coil, which is how much? E is equals to minus of d phi by dt, again applying Lenz law and Faraday law of induction. So it is minus of d by dt, and this phi will be BA cos omega t. Now see, this one is expression. Now d by dt, b is constant, area is constant, take it outside, minus sign is again taken outside. d by dt of cos omega t, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, cos omega t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा d by dt ऑफ cos omega t. ओमेगा एक नंबर है, देन इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, माइनस ऑफ साइन ओमेगा t एंड माइनस माइनस प्लस. सो इट इज माइनस ऑफ साइन ओमेगा t. दिस इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा. एक और चीज़ यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी है. अब इसके बाद ओमेगा का भी तो डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा, ओमेगा टी का डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का भी अलग से होगा. तो ये हो जाएगा ओमेगा डी टी बाई डी टी. सो इट इज़ ओनली ओमेगा. सो इट इज़ ओमेगा अगेन. तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी. तो ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारा E is equals to बी ए ओमेगा
sine omega t. It is because of the differentiation. D by dt of cos omega t, it is equals to d by dt of cos omega t is, नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, cos omega t का माइनस साइन ओमेगा t multiplied with the differentiation of this omega t also, it is omega, so it is minus omega sin omega t. ये होता है और इसी का मैंने वहाँ यूज़ किया. Now this is for one turn of the coil. If the coil having n turns, अगर coil में n turns हो तो then E is equals to simply multiplied by n, so it is n b a omega n times of b a omega sin omega t. This is the value of the EMF induced in our this case when the orientation of the coil is changing with respect to the magnetic field. So in this particular case, when this EMF will be maximum, the EMF will be maximum if sin ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, यानी इसकी ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी है. साइन ओमेगा टी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कम होगा साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन दिस केस और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट मीन्स दिस केस जब हमारा फील्ड लाइंस जो है ये इस तरह हो जाए, यानी एरिया इज parallel to the magnetic field and area vector is perpendicular to the magnetic field. So this will be E is equals to n b a omega. E max is equals to, इसको E नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये मैक्सिमम वैल्यू है जब साइन ओमेगा टी 1 रखे. सो दिस इज E is equals to, now put in this case n b a omega is actually epsilon naught or E naught, so we can write this as E naught sin omega t. It is the general equation for the EMF due to the changing orientation of the coil. Alright, so this is our required expression. We can write it also as sin omega. Omega is angular velocity. Take it, write it in linear velocity, linear frequency, just because it is angular frequency. So sin 2 pi f t. This can also be written epsilon E naught sin 2 pi f t. Alright, so this is for the EMF induced when coil is rotating in a magnetic field. Thank you.